Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 63 as I'll be continuing with Unit 16 adjectives. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 63 as I'll be continuing with Unit 16 adjectives. Students, in my last video, I had completed exercise 4, that is, write any two nouns which can use these adjectives. And then I had explained the possessive pronouns and also explain the difference between possessive pronouns and possessive adjective. And students, there's a table given on page number 63. I hope all of you have learned. I had explained this table. And students, the main difference between possessive pronouns and possessive adjective is that all the possessive pronoun except for mine ends with s, and they also come at the end of the sentence, whereas the possessive adjectives, they come before the noun which they describe. Fine. And the possessive pronoun his and its are the same in the possessive adjectives also. So you need to keep these things in mind. And please learn the table given on page 63 that with subject pronoun has got which possessive pronoun and which possessive adjective. So you need to learn. And today I'm going to start with exercise 5, that is fill in the blanks with possessive adjective form of the given subject pronoun. Now, in this exercise, students, the subject pronoun is given in the bracket, and we need to read the sentence and fill in the blank of that sentence with the possessive adjective of the subject pronoun given in the bracket. बेटा एक सेंटेंस है जिसमें एक ब्लैंक है, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया है. अब आपको अगर ये टेबल जो याद है पेज नंबर 63 पे, दिस पिंक टेबल कि कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन का कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन होगा और कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. आप सब अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर ये है तो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, और सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया है ब्रैकेट में और हमें क्या भरना है ब्लैंक में, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव. सो यू नीड टू लर्न दिस टेबल. नाउ द फर्स्ट वन इज what is dash name. What is dash name? और ब्रैकेट में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया है बेटा वो है you. अब you, all of you know, you is the subject pronoun of the second person. Singular या plural, anything, हम उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, यू. और यू का जो पोजेसिव प्रोनाउन है दैट इज योर्स, YOURS, योर्स. और यू का पोजेसिव
एडजेक्टिव है योर. फाइन. सो आपको भी बिना बुक को देखे अगर आप लर्न कर लोगे तो आप तुरंत ऐसे बोलोगे. इफ यू इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, योर्स इज द पोजेसिव प्रोनाउन एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी योर. सो वी विल बी राइटिंग YOUR योर इन दी ब्लैंक, क्योंकि यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है और उसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है बेटा? योर. यू कैन सी इन द पिंक कॉलम लास्ट में यू का पोजेसिव प्रोनाउन इज योर्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव इज योर. तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट इज योर नेम? फाइन. What is your name? So please write your in the first blank. You subject pronoun दिया हुआ है और subject pronoun के साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर you subject pronoun है that means कि वो second person के साथ use हुआ है, तो उसका जो possessive pronoun है वो क्या होगा? yours. और पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर्स का एस हट जाएगा तो क्या होगा? योर. सो व्हाट इज योर नेम? तभी हमने योर भरा. योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है किसका? सब्जेक्ट प्रोनाउन यू का. फाइन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन चिल्ड्रन. नाउ द सेकेंड वन. डू दे fulfill dash promise. And the subject pronoun given in the bracket is they. Fine. Subject pronoun जो ब्रैकेट में दिया है वो क्या है बेटा? they. अब दे सब्जेक्ट प्रोनाउन हम किसके साथ यूज करते हैं? दे सब्जेक्ट प्रोनाउन हम थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज करते हैं और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है दे का क्या है? theirs. THEIRS theirs. और उसमें से हम एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? THEIR their. पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? there. So we will be writing there. Fine. And always keep in mind जो possessive adjective होता है वो हमेशा noun के पहले आता है, उस noun को describe करता है. Like in sentence 1, what is your name? Your किसके पहले आया है? name. name क्या है? noun है. और your किसको describe कर रहा है? किसका possession बता रहा है? नेम का. योर नेम है ना? योर नेम. तो नेम नाउन है, उसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? योर. फाइन. सेकेंड सेंटेंस में डू दे फुलफिल देयर प्रॉमिस. इसमें प्रॉमिस नाउन है और उससे पहले क्या आया? THEIR देयर जो पोजेसिव एडजेक्टिव है. किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रॉमिस को. सो their promise, उनका promise, possessive adjective. Fine. It describes the noun which follows the adjective. So, do they fulfill their promise? इसमें their किसका है? possessive adjective they का है और they हम किसके साथ यूज करते हैं? third person plural. they का जो possessive pronoun है theirs, that is THEIRS theirs. और उसका जो possessive adjective है that is THEIR their. Fine. Now, I hope all of you have written the first two blanks. Fine. And these are clear to you. Now I'm going to erase them and write the third one. The third one is
that Tanya's book is that Tanya's book? No, comma, it is dash. It is dash book. And the subject pronoun given in the bracket is I. Fine. Third sentence is that Tanya's book? No, it is dash book. Fine. अब आपको देखना है सब्जेक्ट प्रोनाउन ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आई. आई किसके साथ यूज करते हैं? विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, है ना. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द वन हु स्पीकिंग. सेकेंड पर्सन कौन होता है? द वन हु लिसनिंग, जिससे कि फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग. एंड थर्ड पर्सन कौन होता है? द वन whom the first person is talking about. Fine. So is that Tanya's book? No, it is dash book. I first person singular का subject pronoun है. I का possessive pronoun है mine, और mine is the only possessive pronoun which does not ends with s. और I का possessive adjective क्या है? my. तो यहाँ पे हम I का possessive adjective क्या है? my. So we'll be filling the blank with my. So is that Tanya's book? No, it is my book. और आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन का कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है. और ये तभी आएगा जब आप ये पिंक वाला बॉक्स गिवन ऑन पेज 63 इफ यू लर्न दिस. फाइन. और ये my जो possessive adjective है, as told earlier, it describes the noun book. book इसके बाद है और ये book को describe कर. my book possession बता रहा है book की कि book किसको belong करती है. possessive adjective वो noun के बारे में बताता है कि वो किसको belong करता है. Now, the fourth one. Turn the page number 64, the fourth one. This is dash home. And the subject pronoun given in the bracket is we. अब वी का हमको यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना है. वी हम किसके साथ यूज करते हैं? वी किसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है? वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल. फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? वी. और वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन है दैट इज आर्स. OURS आर्स. और वी का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है हम उस आर्स में से एस को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? OURR, है ना. तो हम वी का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या लिखेंगे? OURR. दिस इज आवर होम. और ये आर पोजेसिव एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है? होम को, है ना. होम की पोजीशन बता रहा है कि वो किसको बिलोंग करता है. आर होम, है ना, हमारा घर है. और वी हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए. सो आर इज व्हाट? द पोजेसिव एडजेक्टिव ऑफ वी. फाइन. I hope all of you have written the third and the fourth sentence. Fill in the blanks. Fine. So once again I'll read, then I'm going to erase it. The third one. Is that Tanya's book? No, it is my book. Write my in the third blank. Fourth. This is our home. Our
किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है? वी का. सो प्लीज राइट आर इन द फोर्थ blank. I hope all of you have written, children. Now I'm going to erase this and write the fifth one. The fifth one. Riyaz says that these are dash shoes, and the subject pronoun given in the bracket is he. The fifth one is Riyaz says that these are dash shoes, और subject pronoun bracket में क्या दिया है बेटा? he. he हम किसके लिए यूज करते हैं? for third person singular. if you're talking about one male human being, उसके लिए हम he यूज करते हैं. और he का जो possessive pronoun है that is his, और इसका जो possessive adjective है वो भी his है ना. ये आपको याद रखना है कि जो subject pronoun he है उसका possessive adjective और possessive pronoun his है. both are same. fine. so हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? possessive adjective his. Riyaz says that these are his shoes. So please write his in the fifth blank. I hope all of you have written his in the fifth blank. Riyaz says that these are his shoes. His किसका बेटा possessive adjective है? he का. and his possessive pronoun भी है and possessive adjective भी है depending upon the sentence. अगर उसके बाद noun आता है तो वो possessive adjective होगा, बिकॉज फिर वो नाउन की पोजीशन बताता है कि वो पर्टिकुलर नाउन किसको बिलोंग करता है. फाइन. नाउ द सिक्स्थ वन. लुक एट माय parrot. Look at my parrot. It is in dash cage. और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन ब्रैकेट में दिया है वो है it. अब बेटा it जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर एनिमल और थिंग. अगर कोई भी हम आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल एनिमल और थिंग, है ना, कोई एक एनिमल या थिंग की हम बात कर रहे हैं तो हमेशा हम उसके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे? इट. और इट सब्जेक्ट प्रोनाउन का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है दैट इज इट्स, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स ही है. जैसे ही का पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज है, सेम वे इट के जो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव आदि सेम, दैट इज इट्स. फाइन. तो ये आपको याद रखना है कि इट्स इज इट्स ओनली वेदर इन पोजेसिव प्रोनाउन और इन पोजेसिव एडजेक्टिव. सेम वे हिज इज हिज ओनली वेदर इन पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव. बट डिफरेंस पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? वो हमेशा नाउन उनके बाद आता है, बिकॉज दे डिस्क्राइब द नाउन. वो बताते हैं कि वो पर्टिकुलर नाउन किसको बिलोंग करता है. आप देखो यहाँ पे हिज शूज है फिफ्थ वाले में, हिज के बाद शूज हैं, शूज नाउन है और ये पोजेशन बता रहा है कि ये शूज किसको बिलोंग करते हैं. तो हिज शूज ये हिज के शूज हैं. देन दी सिक्स वन, इट्स केज. केज किसको बिलोंग करता है? इट्स. पैरेट का केज है और ये इट्स किसके लिए यूज किया है?
पैरट के लिए। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उनके बाद हमेशा नाउन आता है जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। फाइन। सो अगेन आई एम रीडिंग द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ सेंटेंस एंड देन आई एम गोइंग टू इरेज इट. Riyaz, the fifth one, Riyaz said that these are his shoes. The sixth one, look at it, my parrot. It is in its cage. Fine. I hope all of you have done, children. Now I'm going to erase and write the seventh one. The seventh one. She gave me dash puppy for a day, and the subject pronoun given in the bracket is she. और she हम किसके लिए बेटा यूज करते हैं? फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल ह्यूमन बीइंग, है ना। कोई भी अगर हम किसी एक लड़की की या लेडी की बात करते हैं तो हम उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? शी। और शी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो है हर्स, HERS, हर्स। और एस को हम हर्स में से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? हर। और हर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है बेटा? शी का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। एंड आवर सेंटेंस विल बी शी गेव मी हर पपी फॉर अ डे। और ये हर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हर पपी। पपी किसको बिलोंग करता था? हर का। फाइन। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव में बेटा हमेशा उसके बाद नाउन आता है जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। तो शी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है? हर। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? हर्स। फाइन। सो प्लीज राइट हर इन द सेवेंथ blank. Now the eighth one. Where is dash home? And the subject pronoun given in the bracket is you. Fine. You हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यू यूज करते हैं। और यू का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है योर्स है, और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? योर। हम उसमें से एस हटा देंगे तो क्या हो? हमको यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो वो हो गया योर। सो वेयर इज योर होम? और ये वेयर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? होम को। होम की पोजीशन बता रहा है कि किसका घर? योर होम। फाइन। सो कीप इन माइंड कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा वो हमेशा उनके बाद नाउन फॉलो होता है जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं। वेयरएज पॉजेसिव प्रोनाउन में जो पॉजेसिव प्रोनाउन है जनरली वो सेंटेंस के बेटा एंड में आते हैं। एंड माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके लास्ट में एस नहीं, बाकी सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस के लास्ट में एस है। सो वंस अगेन आई विल रीड द सेवेंथ एंड एट्थ सेंटेंस देन आई एम गोइंग टू erase it and write the ninth one. Seventh one. She gave me her puppy for a day. Her किसका possessive adjective है? She का. Then the eighth one. Where is your home? You का जो possessive adjective है वो क्या है? Your. Fine. I'm going to erase and write the ninth one. He has
two cousins. He has two cousins. Dash names are Joy and Jeetu. And the subject pronoun given in the bracket is they. Fine. Now, the ninth one is he has two cousins. Dash names are Joy and Jeetu. और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या दिया है बेटा? दे किसके साथ यूज होता है? विथ थर्ड पर्सन प्लूरल. और दे का जो पोजेसिव प्रोनाउन है दैट इज theirs. THEIR इज theirs. और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? THEIR. और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद ब्लैंक आ रहा है, इसलिए हमने देयर का टी कैपिटल किया, बिकॉज वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. फाइन. सो ही हैज टू कजिन्स. देयर नेम्स आर जॉय एंड जीतू. और ये देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, बिकॉज उसके बाद जो नेम्स आ रहा है वो क्या है? नाउन है, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसका वो पोजेशन बता रहे हैं. फाइन. Now the 10th one. They have a pet dog. Dash breed is special. And the subject pronoun given in the bracket is it. They have a pet dog. Dash breed is special. अब हमें डैश में किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भरना है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इट का. इट हम किसके लिए यूज करते हैं? इट हम थर्ड पर्सन सिंगुलर एनिमल और थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं. और इट का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है दैट इज इट्स. और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी इट्स है. इट्स इज द पॉजिटिव प्रोनाउन एंड दी पॉजिटिव एडजेक्टिव बोथ. बट आपको कैसे पता लगेगा कि वो पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव? अगर उसके बाद नाउन आता है तो जिसको वो डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है. तो इट का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो क्या है? इट्स. एंड हम इट्स का आई कैपिटल करेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर, इसीलिए हमने इट्स का आई कैपिटल किया है. फाइन. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? दे हैव अ पेट डॉग. इट्स ब्रीड इज स्पेशल. Fine. Now for this solving such kind of exercise you need to be thorough with the tables, है ना. अगर आपने pronouns के tables learn कर रखे होंगे और अब आपको इसको learn करने में एकदम दिक्कत नहीं होगी possessive pronoun और possessive adjective वाला table, because generally जितने भी possessive pronouns हैं उनके लास्ट में s है माइन को छोड़ के, और s को हम रिमूव कर देंगे तो वो possessive adjective हो जाएगा, है ना. एक्सेप्ट माइन. माइन में एस लास्ट में नहीं है, तो माइन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो क्या है बेटा? माइन. फाइन. सो वंस अगेन आई रिवाइज दीज सेंटेंसेस एंड देन आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड. द नाइन्थ वन. ही हैज टू कजिन्स. देयर नेम्स आर जॉय एंड जीतू. प्लीज राइट देयर इन द ninth blank, and please ensure that T of there will be capital as we are starting the sentence. Then the 10th one. They have a pet dog. Its breed is special.
इट्स का आई बी कैपिटल होगा बिकॉज ये आफ्टर फुल स्टॉप है एंड वी आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद इट्स का आई बी कैपिटल होगा. So students, that's all for today. Please do revise the taught exercises, and this exercise, the remaining two fill in the blanks of this exercise, I'll be continuing in my next video. Thank you students. Have a good day ahead.